लोक निर्णय 2024। Welcome listeners to our ongoing series on elections, Lok Nirnay 2024. In this program, we will bring you election-related developments, various updates and analysis of General and Assembly Elections 2024. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Vishal Sharma. नमस्कार, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024। इस कार्यक्रम में हम लोकसभा चुनाव से जुड़े समाचार लगातार आप तक ला रहे हैं और साथ ही साथ अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास भी जाकर जानने का प्रयास करते हैं कि क्या है वहां के चुनावी समीकरण और किस तरह की चुनावी तस्वीर वहां उभर कर सामने आ रही है। और इसके अलावा कार्यक्रम में हम चर्चा भी करते हैं अपने विशेषज्ञ के साथ। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक टी.आर. रामचंद्रन। टी.आर. रामचंद्रन जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। Let's begin with the headlines. Senior BJP leader Amit Shah addresses public meetings in Kushinagar, Salempur and Chandauli in Uttar Pradesh. Senior Congress leader Rahul Gandhi holds election rallies in Patna Sahib, Patliputra and Ara Lok Sabha constituencies in Bihar. Jammu and Kashmir witnesses highest poll participation in the last 35 years. वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, सलेमपुर और चंदौली में जनसभाओं को किया संबोधित। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने बिहार के पटना साहिब, पाटलिपुत्र और आरा लोकसभा क्षेत्रों में 3 चुनाव रैलियां की। और जम्मू और कश्मीर में पिछले 35 वर्षों में सबसे अधिक मतदान। Senior BJP leader Amit Shah addressed public meetings in Kushinagar, Salempur and Chandauli in favor of party candidates today. Mr. Shah said that this election is for development and for securing the country. It is for the welfare of the poor. BJP National President JP Nadda also addressed several meetings in Varanasi for Prime Minister Narendra Modi's election campaign today. Chief Minister and senior BJP leader Yogi Adityanath addressed public meetings in Balia, Robertsganj, Ghosi and Varanasi today. Mr. Yogi said that people have seen a changing India under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. He added that there is a huge difference between the India before 2014 and the India of 2024. On the other hand, Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav addressed a political gathering in Ghazipur and Chandauli today. The SP chief claimed that the BJP and BSP have joined hands internally. भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए 4 जून को 400 से अधिक सीटें हासिल करेगा और नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मऊ में एक जनसभा में श्री शाह ने ये बात कही। Former Congress President Rahul Gandhi held election rallies in Patna Sahib, Patliputra and Ara Lok Sabha constituencies. Addressing a public meeting in Paliganj in Patliputra constituency, Mr. Gandhi said the India bloc will empower women of poor families by Mahalakshmi scheme and every woman head of the family will get monthly help of more than 8,000 rupees. RJD leader Tejashwi Prasad Yadav also held election rallies in Jehanabad, Paliganj, Jagdishpur and Bihta. On the other hand, JDU President and Chief Minister Nitish Kumar held a roadshow in Hilsa in Nalanda parliamentary constituency. Addressing a public meeting in Hilsa, Mr. Kumar claimed that his government will achieve the target to provide 10 lakh government jobs by next year. Senior BJP leader and Chief Minister of Madhya Pradesh, Dr. Mohan Yadav, and Bihar Deputy Chief Minister Samrat Chaudhary also held public meetings in Patliputra and Patna Sahib parliamentary constituencies. Addressing a gathering in Maner in Patna, Mr. Yadav said that it is very ridiculous that the Congress is now talking about poverty elimination after ruling the country for more than 55 years. लोकसभा चुनाव के दौरान जम्मू कश्मीर में 58.46% मतदान दर्ज किया गया, जो पिछले 35 वर्षों में मतदाताओं की सबसे अधिक भागीदारी है। ये उल्लेखनीय भागीदारी मजबूत लोकतांत्रिक भावना और नागरिकों के बढ़ चढ़कर आगे आने का प्रमाण है। केंद्र शासित प्रदेश में 5 लोकसभा सीट श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग, राजौरी, उधमपुर और जम्मू हैं। कश्मीर घाटी के 3 निर्वाचन क्षेत्रों श्रीनगर में 38.49, बारामूला में 59.1 और अनंतनाग राजौरी में 54.84% मतदान दर्ज हुआ। उधमपुर में 68.27 और जम्मू में 72.22% वोट डाले गए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने इस उपलब्धि की सराहना की है।
टी आर रामचंद्रन जी, अब 19 अप्रैल से शुरू हुआ मतदान का जो ये दौर, काफी लंबा मतदान का दौर चला और अब लड़ाई जो है इस चुनाव की, लोकसभा चुनाव की, अब 7वें चरण पर आकर टिक गई है। आखिरी दौर, और 1 जून को वोट डाले जाएंगे। इस बार 7वें चरण में 57 सीटें दांव पर हैं और अगर हम देखें तो 2019 के चुनाव में एनडीए, भाजपा और उसके सहयोगी दल जितने भी हैं, 32 सीटें ले गए थे और यूपीए को केवल उस समय 9 सीटें मिली थी और अन्य दलों को 14 है। बीजेपी की अगर हम बात करें तो काफी 33 के 37 के करीब सीट मिली थी, कांग्रेस को 8 और टीएमसी को 9। इस बार जो है, क्या आप देख रहे हैं जो अब 7वें चरण का मतदान बचा है? देखिए, ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि बीजेपी की परफॉर्मेंस पिछली तरह जितनी अच्छी थी उतनी अच्छी इस बार शायद नहीं होगी, और उसके कई कारण वो बताते हैं। एक तो है कि जिस तरीके से इलेक्शनियरिंग करना चाहिए था और जो लीडरें पिछली बार बाहर बहुत से जगहों पे जाके उन्होंने अपनी कैंपेनिंग की, उतने लीडर इस बार उनको मिल भी नहीं पाए। तो आखिरकार उनको काम करना पड़ा, जो गिने चुने लीडर्स उनके पास इस बार हैं। तो आखिरकार मुझे लगता है कि बीजेपी जरूर सत्ता में आएगी, पर उसी मार्जिन से जितनी उनको पिछली बार मिली थी, वही मार्जिन उनको मिलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। We will continue with this discussion, but let's go over to Kolkata, where our correspondent Kalyan Laha is with us. Kalyan, as we were discussing, the election is in its last phase, the 7th phase, which is going to happen on 1st June. What's the ground report on campaigning of various political parties in West Bengal? All the political parties are campaigning to their utmost strength, but one factor is that Cyclone Remal has affected this process of campaigning yesterday and today also. No campaigning activities have been done by the political parties, and there is a possibility that tomorrow all the political parties will jump in the public outreach process. And now let's listen to this report from Kalyan about the Jayanagar constituency, which is going to polls on 1st June. Jayanagar Lok Sabha constituency will go to polls on 1st June under the 7th and last phase of general elections to the Lok Sabha 2024. There are 7 assembly segments in this constituency. They are Gosaba, Basanti, Kultali, Jayanagar, Canning Paschim, Canning Purba and Mograhat Purba. All come under South 24 Parganas district of West Bengal. Jayanagar is a reserved seat for scheduled caste. 11 candidates including 4 independents are fighting in this seat. There are more than 18 lakhs 40,000 electors in this constituency, of which 9 lakhs 3,184 are female. All the assembly segments under this constituency were captured by Trinamool Congress in the last assembly election in the state. Jayanagar sitting MP is Trinamool's Pratima Mandal. Trinamool Congress has fielded her again in this election. She had held the seat since 2014. BJP's candidate is Ashok Kandari and Left Front's candidate is Shamarendranath Mandal of Revolutionary Socialist Party. Mr. Ramchandran, if we look at Jayanagar seat, we see that it's going to be a rematch of 2019. Pratima Mandal, who's a sitting MP from TMC, is going to be fighting against Ashok Kandari of BJP among the other candidates. How do you see this rematch? Because it was the first time that TMC also, won on that seat in 2019. Well, I think in some instances, it's going to be a tough fight for the TMC. The TMC had done quite well the last time, but this time their own expectations are far lower, and their efforts have been to somehow push their cadres and leaders into fray. But many leaders who contested last time have been compelled to stay out rather than throwing their hat in the ring. And therefore the party has had to nominate new people, and not many people had come forward voluntarily to say that, I could possibly contest this seat and win. So therefore, I think the BJP has been at a disadvantage, and this could hurt them in the medium to long term. But we also saw, if I talk specifically about the 6th phase, we saw the highest polling percentage in West Bengal, 80% plus. So if you look at the trend of the last 6 phases, West Bengal has been, there's been a very enthusiastic participation from West Bengal. What do you interpret from that?
I think the participation in West Bengal has always been very encouraging for the major parties, and this time it has been all the more for the BJP, because BJP has been losing out in certain states in the Hindi belt and northern belt, and therefore they hope to make up certain seats from some of the other areas like West Bengal. West Bengal has been greatly helpful to the BJP in picking up their numbers in the overall analysis. Now, whether that will happen this time or the BJP is likely to lose seats in West Bengal remains to be seen. But they are not on a very strong wicket in West Bengal. Right, and from West Bengal, let's go over to Jharkhand, where our correspondent Kunal Shinde is with us. Kunal, welcome to the program. Can you give us an update on campaigning in Jharkhand in the seventh and the last phase? Yeah, it is the seventh phase, and campaigning has gained momentum. It has intensified greatly after the completion of the sixth phase of elections. So, Prime Minister and senior BJP leader Narendra Modi will be visiting Jharkhand tomorrow. He'll be addressing a rally. Apart from that, senior Congress leader Rahul Gandhi also will be coming to Jharkhand on 31st. There are 3 seats where the polling will be held in the seventh and last phase of general election in Jharkhand. These 3 seats are Dumka, then Godda and Rajmahal. Kalpana Soren of Jharkhand Mukti Morcha, she is also campaigning intensely over here. Like she is campaigning hard for the party candidates of Jharkhand Mukti Morcha. Apart from that, Arjun Munda, he campaigned in Dumka, where he criticized the INDIA alliance. He specifically criticized the Jharkhand Mukti Morcha for widespread corruption that has taken place, alleged widespread corruption, I should say. And apart from that, Kalpana Soren also, when she addressed the rally, she appealed the voters to vote for the INDIA and the Congress and Jharkhand Mukti Morcha. She said that when INDIA bloc comes to power, women specifically will get 8,700 rupees per month. So this all comes under the Nyay Patra of the Congress. That's what she read out in her rally. So the campaigning is going on very intensely over here in Jharkhand. So thank you, Kunal, for that update. We were just listening to Kunal, Mr. Ramchandran, and Dumka. It's very interesting because Dumka is a seat where Shibu Soren, JMM's founder, Shibu Soren's daughter-in-law, is now contesting against the official JMM. She's contesting, Sita Soren is contesting on BJP ticket against the JMM candidate. Do you see it as how do you see the various parties that are pitted against each other? JMM versus BJP and the other parties. How do you see the contest? I think the contest is turning out to be quite interesting because there is a definite concept of fight, and therefore the chances of the BJP candidate coming higher than the local candidate of an opposition party seems to be somewhat bleak. But nevertheless, I think this is too much of a conjecture at this point of time to make any guesses. But at the same time, the BJP would like to see that its people gain more votes and come on top. But there is an element of discontent among the people in the national capital. So I don't know how this is really going to turn out, because they feel they may not be able to muster the number of seats that they got 5 years ago. जी, हेमंत सोरेन की पूरे चुनावी परिदृश्य से गैर मौजूदगी ये चुनावों पर झारखंड में कितना असर डाल सकती है, आपको क्या लगता है? साहब, झारखंड अपने आप में एक राज्य है जहां पर कंपटीशन बहुत स्टिफ है और हम इसको नकार नहीं सकते कि बीजेपी जरूर खड़ी है, उसकी एक अपनी मजबूती है उस जगह पे, पर ऑपोजिशन पार्टीज ने भी अपनी तरफ से काफी कोशिश की है और काम किया है, और हो सकता है कि जिस तरीके की स्वीप बीजेपी को मिली पिछली बार, वो स्वीप उनको ना मिले। और अब चलेंगे जालंधर, जहां से हमारे संवाददाता शिशु शर्मा शांतल हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिशु, पंजाब में 13 सीटों पर आखिरी चरण में चुनाव मतदान होने जा रहा है। बताइए कि क्या वहां पर चुनाव प्रचार की स्थिति है, कौन कौन दिग्गज नेताओं की किस्मत इस बार दांव पर है वहां पर? जी विशाल,
जहां तक यहाँ चुनाव प्रचार अभियान की बात है तो ये पहले तो बड़ी धीमी गति से चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये बहुत ही तेज गति से प्रचार चल रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आए हैं तो उसके बाद से चुनाव प्रचार ने एकदम गति पकड़ ली है और बाकी पार्टियों जैसे कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, उनके वरिष्ठ नेता जो हैं वो भी पंजाब का रुख किए हुए हैं, लगातार जनसभाएं और रोड शो जो है वो कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम मौजूदा मौसम की बात करें तो गर्मी तो बेहद है और जनसभाओं में जो है लोगों की भीड़ उमड़ रही है, खास करके वहां पे कार्यकर्ता लोग जो हैं वो आ रहे हैं। लेकिन आम आदमी की बात करें तो आम आदमी पूरी तरह खामोश है और इन चुनावों को लेकर कोई चर्चा नहीं करना चाहते हैं और आने वाले 3 दिनों में चुनाव प्रचार के और जोर पकड़ने की संभावना है और ऐसा जानकारी है कि इन 3 दिनों में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है वो राज्य भर में रैलियां और रोड शो करेंगे। जी शिशु शर्मा शांता, इस जानकारी के लिए धन्यवाद। और अब बात पटियाला सीट की करेंगे। काफी रोचक वहां पर इस बार संघर्ष हो चुका है। पटियाला में हालात बहुत बदले हैं इस बार, और पटियाला सीट पर कैसे है चुनावी समीकरण बता रहे हैं हमारे संवाददाता शिशु शर्मा। शाही शहर पटियाला पर आधारित इस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 3 कद्दावर नेताओं के चुनावी रण में उतरने से यहाँ रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। मौजूदा सांसद परनीत कौर कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हुई हैं और इस बार वे अपनी 5वीं जीत के लिए चुनाव मैदान में हैं। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने अपने ही स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह पर भरोसा जताया है। उधर सन 2014 में बतौर आम आदमी पार्टी के सांसद बने डॉक्टर धर्मवीर गांधी भी दल बदल करके इस बार कांग्रेस पार्टी के टिकट पर मैदान में उतरे हैं। श्रोमणी अकाली दल के वरिष्ठ नेता एनके शर्मा ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने जगजीत सिंह छरबर को मैदान में उतारा है। जी रामचंद्रन जी, पंजाब की अगर हम बात करें, 3 दशक बाद भारतीय जनता पार्टी और श्रोमणी अकाली दल अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, कोई गठबंधन नहीं है इस बार, और 28 साल बाद बीजेपी अब क्या कहते हैं अकेले चुनाव लड़ रही है। और देखें तो इस बार पंजाब में स्थितियां बदल गई हैं, सभी प्रमुख दल अपने अपने दम पर चुनाव मैदान में है। क्या किस तरीके से देख रहे हैं इस बार आप पंजाब की 13 लड़ाइयों पर, 13 सीटों पर लड़ाई को? देखिए, जिस तरीके से पार्टीज वहां पर स्प्लिट हो गई हैं, पहले एकजुट होकर लड़ते थे क्योंकि उनको मालूम था अगर एक साथ नहीं लड़ेंगे तो उनको सीटें नहीं मिलेगी। अब इस बार वो खुद बिखर गए हैं, सब अपना अपना लड़ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में सीट्स तो स्प्लिट होंगी सब में, बट क्या इक्वली स्प्लिट होगी या किसी एक को ज्यादा मिलेगी, किसी को कम मिलेगी। पर जो भी है, नुकसान कुछ राजनीतिक दल को पंजाब में जरूर होगा, जो शायद पिछली बार जिन्होंने अच्छा किया। जी, बीजेपी ने, भाजपा ने हिंदू समुदाय के वोटरों पर नजर गड़ा रखी है, वहां पर 39% वोटर है वहां। क्या रणनीति अब इस बार भाजपा की वहां देख रहे हैं? 13 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, 13 की 13 सीटों पर। नहीं, वो तो ठीक है, अगर नहीं उतारते तो शायद उनको फिर जो जितनी मिलनी थी वो भी नहीं मिलती। देखिए, मेरे ख्याल में बीजेपी बड़ा स्मार्ट है, वो उसने सोचा 13 सीटों में ही खड़ा कर दो, जितने जीतने उतने तो जीत जाए, नहीं तो अगर हम 10 सीटों में करते, 3 छोड़ देते तो उनका तो नुकसान होता। और रोचक बात यह है, जो 3 सीटें जो हमेशा भाजपा में लड़ती रही है, गुरदासपुर, अमृतसर और होशियारपुर, यहाँ पर तो उसने अपने कैडर के उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन बाकी सीटें हैं वो दूसरे दलों से आए उम्मीदवार उतारे हैं। देखिए, कैंडिडेट्स भी तो मिलने चाहिए, आपके पास कैंडिडेट्स नहीं है तो क्या करेंगे आप। खासतौर पर जलंधर से सुशील कुमार रिंकू आम आदमी पार्टी के एकमात्र सांसद थे वहां पर, वो भाजपा में इसकी तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, वो जीत जाएंगे मुझे लगता है, जिस हालत में उन्होंने चुनाव चुना है और जिस पार्टी की तरफ से लड़ रहे हैं, शायद वो जीत जाए। And we have our Lucknow correspondent online with us. But before we go over to him, Mr. Ramchandran, we're staying on with Punjab. We, of course, like Vishal just said, that this time all the parties are contesting on their own. No, there is no alliance, so to speak. Apart from the fact that they are all contesting on their own, do you think the farmers' agitation is going to be play a big role in the elections there? Because Punjab farmers, we all know it's a very powerful lobby. So do you think that's going to be a deciding factor and a very important factor? Well, I will definitely agree with you 100% that a party which has shown greater sympathy to the farmers will definitely have an upper hand. But how this upper hand will play and how the streets will be distributed, very difficult to say at this point of time. 13 seats in Punjab,
And even if anyone gets about 7, just a shade above the half, I think they are through in a big way, whichever party they belong to. और अब लखनऊ से हमारे संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सुशील तिवारी जी, उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर अब आखिरी जंग, कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर, किस तरीके से देख रहे हैं वहां पर आप चुनावी लड़ाई इस बार? महत्वपूर्ण है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि तीसरी बार हैट्रिक बनाने के लिए वाराणसी से चुनाव मैदान में है और लगभग तीसरी बार ही उनके खिलाफ मैदान में अजय राय हैं, जो कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण सीट तो गाजीपुर की है। इसके अलावा 2-3 सीटें ऐसी हैं जिस पर केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। महाराजगंज की सीट है, पंकज चौधरी जो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, और चंदौली सीट से लगातार तीसरी बार महेंद्र नाथ पांडे, वो भी केंद्रीय मंत्री हैं, वो चुनाव मैदान में है। अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से चुनाव मैदान में है, वो भी केंद्रीय मंत्री लगातार रह चुकी 2 बार से, और तीसरी बार वो भी हैट्रिक बनाने के लिए उतरी हैं। तो ये 3-4 महत्वपूर्ण सीटें हैं। इसके अलावा गोरखपुर की बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि गोरखपुर जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इलाका है, और रवि किशन शुक्ला जो है, जो कि वहां से सांसद हैं, वो दोबारा किस्मत आजमा रहे हैं, तो वो भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर बलिया से चुनाव मैदान में है, और एक दिलचस्प मुकाबला गाजीपुर में भी है, जहां पर पारसनाथ राय बीजेपी के जहां उम्मीदवार है, वहीं मुख्तार अंसारी के भाई अफजार अंसारी जो है वहां से दूसरी बार, पिछली बार वो जॉइंट किलर थे, उन्होंने मनोज सिन्हा जी को हराया था, जो कि केंद्रीय रेल राज्य मंत्री थे, और बहुत उम्मीद थी उनको उस सीट से, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। घोसी सीट भी बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक जो अलाई है एनडीए के पार्टनर, बीजेपी के पार्टनर हैं एनडीए के, सुभाषपा पार्टी के, उनके राजभर साहब के बेटे जो है अरविंद राजभर, वो घोसी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस 7वें चरण की जो 13 सीटें हैं उसमें काफी महत्वपूर्ण सीटें इस बार चुनाव मैदान में, उसमें बड़े कई दिग्गज हैं। जी, सुशील चंद्र तिवारी जी, धन्यवाद जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे घोसी लोकसभा क्षेत्र की उत्तर प्रदेश में, जहां पर एनडीए और इंडी दोनों गठबंधन की प्रतिष्ठा का सवाल वहां पर बन चुकी है ये सीट। सुनते हैं घोसी पर क्या इस समय चुनावी तस्वीर वहां पर उभर कर सामने आ रही है, हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। पूर्वांचल की घोसी लोकसभा सीट मऊ और बलिया जिलों को मिलाकर बनी है। इस लोकसभा सीट में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इसमें मऊ जनपद की मधुबन, घोसी, मुहम्मदाबाद, गोहना और मऊ, वहीं बलिया जिले की रसला विधानसभा शामिल है। यहाँ 20,66,457 मतदाता 1 जून को 28 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। कभी कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी का गढ़ रही इस संसदीय सीट पर अब तक सबसे अधिक बार यही दोनों पार्टियां जीती हैं। अब तक हुए संसदीय चुनाव में 5-5 बार कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, 3 बार बहुजन समाज पार्टी, 1-1 बार जनता पार्टी, समता पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। 2014 की मोदी लहर में भाजपा प्रत्याशी हरिनारायण राजभर ने इस सीट पर पार्टी को पहली जीत दिलाई थी, लेकिन 2019 के चुनाव में दोबारा बतौर भाजपा प्रत्याशी वह यह सीट हार गए। बसपा के अतुल राय 1,22,568 मतों के अंतर से यहां जीतने में कामयाब हुए थे। इस बार एनडीए गठबंधन ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के पुत्र अरविंद राजभर को प्रत्याशी बनाया है। वहीं इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता राजीव राय चुनावी मैदान में हैं। इनके अलावा बहुजन समाज पार्टी ने बसपा के पूर्व सांसद बालकृष्ण चौहान को अपना प्रत्याशी बनाया है। मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरे संसदीय क्षेत्र में 2,125 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से पूरे संसदीय क्षेत्र को 14 जोन और 138 सेक्टरों में विभाजित कर वहां जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। जी, रामचंद्रन जी, उत्तर प्रदेश की बात करें तो 7वां चरण आखिरी चरण है, 13 सीटें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट वाराणसी को अगर हम छोड़ दें तो बाकी 12 सीटों पर कड़ा संघर्ष देखने को मिल रहा है। काफी जोर लगाना पड़ रहा है भाजपा को वहां पर, और खासतौर पे जो घोसी, गाजीपुर और बलिया सीट जो है, यहाँ पर 2022 के विधानसभा चुनाव में इन तीनों संसदीय क्षेत्रों की कुल 15 विधानसभा सीटें थी, और वहां पर सिर्फ 2 पर भाजपा को जीत हासिल हो पाई थी। किस तरीके से देख रहे हैं वहां पर अब भी ये जो 13 सीटों पर, 12 सीटों पर मैं कहूं तो वाराणसी को छोड़कर लड़ाई? बीजेपी के लिए तो बहुत क्रिटिकल है। अगर उनको इसमें वोट, अगर ये जीत नहीं पाए तो उनके लिए शायद कुछ दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। पर देखिए, इस बार इलेक्शन इस तरह हो रही हैं कि कहीं पर भी प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मेरे ख्याल में हम देख लेते हैं किस तरह हवा बह रही है वहां पर। यूपी का इलेक्शन अगर एक तरफा किसी तरफ हो तो वो बड़ा नुकसान देगा जो पार्टी सत्ता में आना चाहती है नई दिल्ली में। Staying on with Ghosi, as he was saying, Ghosi
like Vishal was also saying, that in 2019, in the 7th phase of the 13 seats that went to polls in UP, BJP won 11, barring Ghosi and Ghazipur. And again, this time we are seeing that BJP supporting its alliance partner Suheldev Bhate Party in Ghosi. So, is it also an acknowledgement of the fact that and deferring to a partner that that maybe we don't have a strong enough partner, but our alliance partner has, so let them have the seat if they win? My experience in covering elections for the last nearly 5 decades is that in UP in particular, nobody wants to take a chance, whichever the party. But at the end of the day, if they're sure they're not going to win, they're not going to put up any candidate who's just going to, take away a few votes here and there. Therefore, seats in UP matter a lot for any party which wants to be at the center governing the country. जी, ओम प्रकाश राजभर की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार उनको अपने साथ ले लिया है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुभासभा के अध्यक्ष भी हैं। 2022 में जब विधानसभा चुनाव हो रहा था उत्तर प्रदेश में, तो जो ओपी राजभर जो थे, इनके जो बयान थे वहां पर मुख्यमंत्री योगी और सवर्णों के खिलाफ, वो काफी चर्चा में है अभी भी। क्या ये भाजपा को या एनडीए को नुकसान पहुंचा सकता है इस सीट पर? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है इस टाइम पर। ये आज आखिरी चरण का वोटिंग है जी। और आखिरकार अगर आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। जो होना था सो हो गया। अब 7वें चरण और आखिरी चरण में वोटिंग हो रहा है, तो ये ज्यादा डिफरेंस तो नहीं क्रिएट कर सकता। बट अगर कोई यूपी में अपना दांव लगाना चाहता है और पहले से लगा चुके हैं, तो मेरे ख्याल में उनको ये मुश्किल जरूर देखना पड़ेगा। From UP, let me just go over to Himachal Pradesh, where there are 4 parliamentary constituencies, all voting in the last and final phase. Now, BJP swept all those seats in the 2019 elections, but right now there's a Congress government in place there. Do you think that's going to be a factor? It can be a factor to a certain extent, but if one is to believe that Congress is going to sweep all 4 seats, I think it's very difficult to say that, because Congress has not been very effective in Himachal. At the end of the day, if you try and see, the Congress is trying its best to do as well as it can in all the states to improve its numbers, but it has not been very successful in the last 2 elections. So I don't know if it is going to make any inroads this time. And I think that's all we have time for in this edition of the program. Mr. T. R. Ramchandran, thank you so much for coming to the studio and discussing important election stories with us. Thank you very much.